Hello, good afternoon. So let's start. So today we are going to deal with a very new chapter. Okay. Hello, welcome everyone. So today we are going to deal with a completely new chapter, which is current electricity. So I welcome all of you in this session. Okay. So today's session, current electricity. ओके तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ध्यान से सुनिएगा कि आपने इससे पहले आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. So when I say electrostatics, it means we are talking about charges at rest. So we're talking about charges at rest. So charges were at rest and there was no motion of the charges. और अभी जो हम पढ़ रहे हैं actually we are going into a new chapter which is electrodynamics. And it starts with current electricity chapter. So when I say electrodynamics, means here we are talking about charges which are in motion. तो अब हम चार्जेस जो हैं उसको रेस्ट में नहीं कंसिडर करेंगे, बट वी विल सी और वी विल कंसिडर द चार्जेस व्हिच आर इन मोशन, राइट? एंड दैट इज व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. So the first term that we are going to deal in current electricity is the term current. How you will define current? Current is defined as rate of flow of charges. ठीक है? Rate of flow of charges या rate of flow of charge, that is what is known as current. So this current can be represented in two forms. One is dq by dt, which is the infinitesimal form, or instantaneous form, as you understand, or it can be given by del q by del t, which is the average form. Now basically when we are talking about current, so few things. When we say rate of flow of charge, so it is rate of flow of charge, but which charge that we are talking about? So the answer is the free charges. What you will consider as free charges? So basically free charges are those charges, and when I say charges, we basically are meaning electrons. When we are saying free charges, it means these are those charges which are very loosely bonded to the nucleus. Means when I'm talking about charges, when I'm talking about charges, I'm basically talking about the charges which are present in the valence shell. Because these electrons which are present in the valence shell, they are basically loosely bonded to the nucleus, and that's why they can move, right? So the concept is this, that when I am talking about a conductor which has large number of free electrons, right, which have large number of free electrons. So so if I'm saying that it is large number of free electrons,
So these free electrons are basically in random motion. For example, if I'm considering about if I'm talking about a conductor, कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are in haphazard motion, they are moving haphazardly in the conductor at a normal temperature or room temperature. बट जब ये हैफाजर्ड मोशन कर रहे हैं तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी in the absence of any applied external electric field, in the absence of any external electric field, these free electrons are in random motion within the conductor. They are not at rest, they are in random motion within the conductor. They will be at rest at absolute zero, not at room temperature. So at room temperature they are in random motion, but after this random motion, suppose they start somewhere from here, they go like this, and finally they reach to the point from where they have started. This is suppose the initial point, this is also the final point. So they will perform random motion within the conductor. और ये जो रैंडम मोशन है, ये इसमें बहुत सारे टकराविफिकेशन भी हो रहे हैं अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ. सो सब टकराविफिकेशन के बाद वो लोग फाइनली जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे एंड कर जाएंगे. इसका मतलब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम 0 to t, एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, दैट इज जीरो वेक्टर, जिसके कारण इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है ये जीरो है, बट इसकी जो एवरेज स्पीड है दैट इज नॉट जीरो, that is a high value because it is covering a large distance and coming back. So average speed जो है random motion का electrons का which are free to move within the conductor, average speed zero है but average velocity zero है पर average speed zero नहीं है. एवरेज वेलोसिटी जीरो होने के पीछे का रीजन क्या है? एवरेज वेलोसिटी जीरो होने के पीछे रीजन है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है. क्या मेरी बात समझ में आई है? बिकॉज जहां से वो स्टार्ट किया वहीं पे एंड कर जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी. तो अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. लेकिन एवरेज स्पीड जो है दैट इज नॉट जीरो बिकॉज एवरेज स्पीड विल बी डिसाइडेड बाय द फॉर्मूला एज यू नो, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इलैप्स्ड, राइट? और ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दिस इज नॉट जीरो, this is definitely some considerable distance that we are moving, right? So some distance that we are moving, considerable तो नहीं बोलना चाहिए, some distance that we are moving. So total जो उसकी average speed होगी वो जीरो नहीं होगी but average velocity जो होगी वो जीरो होगी. I hope you are understanding this. ठीक है? I hope this slide is okay to everyone. Let's move ahead. अभी देखिए जो मैंने आपको करंट डिफाइन किया है which is equal to dq by dt, that is the infinitesimal form, or it is equal to del q by del t. ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ सवाल बन सकते हैं कि सपोज आपको बोल दिया कि जो करंट है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2t² माइनस t प्लस 4 इतना एम्पियर्स है. अच्छा, करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर्स. और चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम्स. तो करंट इज 2t² माइनस t प्लस 4 एम्पियर, इतना करंट है. और आपसे पूछा गया फाइंड द चार्ज that flow through conductor in t equal to 5 seconds. यहां पे ये t equal to 5 seconds जो है, ये ध्यान दीजिए कि यहां पे t is equal to 5 seconds is not an instant but it represents the interval. ये आपको पता है फिर भी मैं लिख देता हूं अगर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है. फ्रॉम t equal to 0 to t equal to 5 seconds.
दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। बच्चा है तो बोलेगा t इक्वल टू 5 सेकंड पे करंट कैसे निकालें, बिकॉज करंट विल बी डिफाइंड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पे, फाइंड द चार्ज दैट इज फ्लोन दैट विल बी डिफाइंड फॉर इंटरवल ऑफ टाइम। Current can be defined instantaneously or average, but charge that will be defined will be for a duration of time or for a time interval, right? That will be defined. बता सकता है कोई इसका आंसर? I को लिखिए dq by dt, तो dq by dt will be equal to 2t square minus t plus 4, ये dt को उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो you will get dq is equal to 2t square minus t plus 4 into dt। अब आप दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये इंटीग्रेशन ये यहाँ पे दे देगा इंटीग्रेशन ऑफ dq, दिस विल गिव यू द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोन, दैट इज q total, which will be equal to integration of 2t square this from which duration t equal to 0 to t equal to 5 seconds। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। क्या निकाल सकते हैं आप एवरीवन? आपको करना है ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। Suppose I give you the charge that is flowing through the conductor is given as t square minus 4t, ठीक है। You have to find out current I as a function of time t and plot its graph। दूसरा आपको बताना है कि what is the current at t equal to 2 seconds। ये दोनों चीजें बतानी है। क्या बता सकते हो? बहुत आसान है, जल्दी खटाक से करके दिखाओ। छोटे छोटे सवाल, कोई खास बात नहीं है, बताओ। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? You have to see I as dq by dt, that is what you will do, which will be equal to d by dt of q, q as a function of time t, you know, which is equal to t square minus 4t, direct we will do, which will be 2t minus 4। तो current as a function of time t is 2t minus 4। If we plot its graph, this is current as a function of time t and this is t, this is 2t minus 4, तो you will get what, t equal to 0 पे current as a function of time t की वैल्यू -4 आई है, ये वैल्यू, और यू नो t इक्वल टू करंट 0 हो जाएगा t इक्वल टू 2 पे। तो आपकी जो ग्राफ आएगी वो ऐसी आएगी कुछ, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t वाला ग्राफ। अच्छा, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो 2 इंटू 2 -4 दैट इज 0, ठीक है। तो करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इज 0। क्या क्लैरिटी यही है? तो ऐसे कुछ सवाल, बेसिक सवाल जो कि करंट के डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, करंट कैसा क्वांटिटी है? व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज करंट? तो करंट इज बेसिकली अ टेंसर क्वांटिटी। ये एक टेंसर क्वांटिटी है, मतलब इसकी डायरेक्शन तो होती है और वो इंपॉर्टेंट भी है, बट it does not follow rules of vector addition। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट इज नोन एज टेंसर क्वांटिटी। अभी समझने वाली बात यह है कि ये टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर ये सिलेबस में नहीं है तो अगर आपसे कोई पूछे कि करंट इज स्केलर और वेक्टर, अगर ये सवाल में सिर्फ आपसे पूछे करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो आपका आंसर क्या आएगा? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर कुछ ना बोले
then current should be what? Tensor quantity, because it is having direction but it does not follow rules of vector addition. समझ में आ रहा है ये? मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है. करंट डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है समझा रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से अभी यहाँ पे. हाँ रोहन देख ले, ये समझ में आया क्या? तेरे को ग्राफ समझ में आया है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे, वैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं है बट मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, क्या आप Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t और t का ग्राफ बता सकते हो कैसा होगा? जो भी आपको नॉलेज है अभी तक ग्राफ के बारे में, जो मैंने आपको सिखाया है, क्या आपको QT का ग्राफ आपको समझ में आ रहा है कैसा ग्राफ होगा? बोल सकते हो? बोल सकते हो? क्या ये एक पैराबोला होगा और वो भी पानी होल्ड करता हुआ? हाँ या ना? पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला, याद है बहुत बाद में मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं. यस और नो? यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लैरिटी है? गुड. अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट बट इट डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन? व्हाई आई एम सेइंग सो, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. देखो, सपोज यहां पे करंट आ रहा है 5 एम्पियर और इधर चला गया 3 एम्पियर और इधर चला गया 2 एम्पियर. तो आप यहाँ पे रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं कर सकते. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इस 3 के 2 कंपोनेंट लेंगे, ये एंगल अगर थीटा होगा तो इधर 3 cos थीटा आ जाएगा, 3 cos थीटा, और इधर 2 है, ये एंगल अल्फा है तो इधर +2 cos अल्फा आ जाएगा, और 3 sin थीटा इधर वाला कंपोनेंट, और 2 sin अल्फा इधर वाला कंपोनेंट, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और 3 cos थीटा +2 अल्फा ये हो जाएगा 5 के बराबर. ऐसी सब फालतू चीजें आप कर नहीं सकते यहाँ पे. क्या बात समझ में आ रही है? मतलब ये रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई या ये रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए ये टेंसर क्वांटिटी है. डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. मतलब ये देख ध्यान से, ये समझ आ रहा है क्या तेरे को एवरीवन? ये देख, मान ली ये 5 एम्पियर है. अगर मैं बोलूं कि मैंने डायरेक्शन को रिवर्स मार दिया, ऐसे इधर 3 जा रहा था, अगर मैंने इधर 3 किया है तो फिर इधर से जो मैग्नीट्यूड जाएगी वो 8 एम्पियर जाएगी. देख बदल गया, यहाँ पे 2 एम्पियर था, अब यहाँ पे 8 हो गया. ठीक है, मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. और बट यहाँ पे वो डायरेक्शन जो है वो वेक्टर एडिशन को वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करता है. क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग. ठीक है? नहीं 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 नहीं, we cannot say like this कि current is both as a scalar and a vector. No, it is not at all a vector. क्योंकि क्यों वेक्टर नहीं है मैंने अभी एक्सप्लेन किया. क्या बात समझ में आई है एवरीवन? क्लैरिटी है? क्या क्लियर है सबको एवरीवन? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये बेसिक बात है. ठीक है, अच्छा, तो अभी ध्यान सुनना, ये वेक्टर रूल को सेटिस्फाई नहीं करता है. तो करंट इन इटसेल्फ, अगर मैं करंट की बात करूं, आई विच इज करंट इज बेसिकली टेंसर क्वांटिटी. लेकिन अगर स्केलर और वेक्टर बोलेगा तो हमें उसको स्केलर ही डिफाइन करना है. वी विल नॉट बी एबल टू कॉल इट एज अ वेक्टर, ऑल्दो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, बट बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सो वी विल नॉट बी एबल टू कॉल इट एज अ वेक्टर. ठीक, डायरेक्शन लेकिन इंपॉर्टेंट है. डायरेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ द सेकंड एग्जांपल. अगर मैंने दूसरे में डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे 2 एम्पियर की जगह पे यहाँ पे भी 8 एम्पियर आ रही है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, अभी ध्यान सुनो. तो फिर एक नए टर्म को डिफाइन किया गया विच इज नोन एज करंट डेंसिटी. बिकॉज करंट स्केलर था तो एक नया टर्म डिफाइन किया गया करंट डेंसिटी, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये जानबूझ कर डिफाइन किया गया. अब ये क्या है एग्जैक्टली क्या है करंट डेंसिटी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, अगर मैं एक कंडक्टर लूं, ध्यान से देखना,
सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंडक्टर, एक कंडक्टर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एंड सपोज इफ आई से दैट द current is flowing in this direction, and let me take a cross sectional area like this, and suppose if the cross sectional area is A, then current density is defined as, अगर मैं current density के magnitude की बात करूंगा उसको ऐसे लिख सकता हूं या फिर J लिखूंगा ऊपर का एरो हटा के, that will be defined as I divided by A. This is what is the definition of current density. J is equal to I divided by A. ठीक है, समझ में आया ये बात? J is equal to I divided by A. तो फिर ये जो A है, this A is area, and we know that area is a vector quantity. एरिया जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया की एक डायरेक्शन, और जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो होती है, अगर मैं ओपन सरफेसेस की बात करूं, इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने डील किया हुआ है, अगर मैं ओपन सरफेसेस की बात करूं तो एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन ईदर ऑफ द डायरेक्शन। मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूं। अभी अगर आप एक चीज समझोगे कि सपोज मैंने एरिया ऐसे की बजाय ऐसा टेढ़ा एरिया लिया होता तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस केस में एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती वो इस तरफ होती, परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है, सपोज एट एन एंगल थीटा। लेकिन करंट तो फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन शोन बाय दिस ब्राउन कलर्ड का या मरून कलर्ड का एरो। तो हमें कौन सा एरिया कंसिडर करना है? तो एरिया वेक्टर के डेफिनेशन में हमें I डिवाइडेड बाय जो एरिया हम ले रहे हैं, दिस विल बी द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये एरिया लेना पड़ता है। तो इसको अगर मैं यहां पे देखूं, जो मैंने ब्लू कलर का एरो बनाया है, तो एरिया विच इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इट विल बी A cos थीटा। सुनना ध्यान। तो एक्चुअली मुझे यहां से एरो हटा देना चाहिए, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो J इज इक्वल टू I बाई A परपेंडिकुलर विच इज I अपॉन A cos थीटा। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि जो I है, देयरफॉर जो I है विल इट बी इक्वल टू J इंटू A इंटू cos थीटा। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए बोला गया कि ये जो करंट है, करंट स्केलर है, एक्चुअली टेंसर है, और ये J जो है इसको वेक्टर बोला गया है, और A जो है वो भी एक वेक्टर है। तो जे ए कॉस थीटा आने के कारण ये बोला गया कि जो I सॉरी ये बोला गया कि I जो है, वेक्टर कैसे होगा, I जो है दिस कैन बी रिटन एज J वेक्टर डॉट A वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई? वेयर J इज नोन एज द करंट डेंसिटी। तो I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर, बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको आप J डॉट A भी लिख सकते हो, या फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो J कैन बी रिटन एज I अपॉन A परपेंडिकुलर। A परपेंडिकुलर मतलब एरिया, वो एरिया जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर, unless and until tensor is stated, current is a scalar, but current density is a vector quantity। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? ये करंट डेंसिटी J वेक्टर, एंड करंट डेंसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और J वेक्टर और A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आपको करंट देता है। तो बहुत बार सवाल आपको आ जाएगा इसके ऊपर, छोटे छोटे सवाल कैसे आ सकते हैं, लॉजिकली सोचो तो उनको भी समझ में आएगा। इसके ऊपर कैसे सवाल आ सकते हैं कि आपको J वेक्टर दे देगा, सपोज 2i कैप
माइनस 3j कैप, और आपको एरिया वेक्टर दे देगा विच इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप, एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द करेंट. So you should straight away do j vector dot a vector. और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा. इसका जवाब आएगा 10 माइनस 6 विच इज 4 एम्पियर इज व्हाट इज योर आंसर. क्या क्लैरिटी है ये? एवरीवन क्लियर है? ये स्लाइड सबको क्लियर है? एवरीवन, इज दिस स्लाइड क्लियर टू एवरीवन? आई एम आस्किंग यू, इज दिस स्लाइड क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं. आइए. सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज करंट, वी अंडरस्टूड व्हाट इज करंट डेंसिटी. ठीक है, ये दो चीजों का हमको समझ में आया है. ठीक है, आइए अभी देखें कि एक्चुअली व्हेन वी से, सपोज एक कंडक्टर है, आज एकदम बेसिक बेसिक बातें होगी. व्हेन वी से दैट यू नो करंट इज फ्लोइंग, तो एक्चुअली व्हेन वी से करंट इज फ्लोइंग में एक्चुअली जो मूव करता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव्स, बट conventionally we consider current as flow of positrons or positive charges. Yes, we consider current as flow of positive charges or positrons. ठीक है, क्या क्लियर है? ये समझ में आई है बात? तो करंट इज, when we say current is flowing, it means what? Actually electron flows, because electron is only free to move, so it should only flow. But conventionally we consider current as flow of positrons or पॉजिटिव चार्जेस. E प्लस के मूवमेंट को हम लोग करंट बोलते हैं, राइट? बट एक्चुअली मूव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट जो हम छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिकली इसके बाद हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है बैटरी. बैटरी, व्हाट इज बैटरी? बैटरी क्या क्या होता है? बैटरी कुछ बेसिक बेसिक बातें हम करेंगे. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस. एकदम छोटी छोटी बातें. व्हाट इज बैटरी, व्हाट इट डज? कैन यू टेल मी? आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू. एनीवन कैन ट्राई टू रेस्पॉन्ड. व्हाट इज बैटरी? व्हाट डज अ बैटरी डू? Group of cells, okay. ओके, गुड. सो देखो, बैटरी क्या होता है कि बैटरी is a source of energy for the charges. कुछ बात समझते हैं. सपोज मैंने आपको एक कंडक्टर दे दिया. इस कंडक्टर के अंदर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या इस कंडक्टर के अंदर? हाँ है. लेकिन अगर आपने इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, सपोज दिस इज वन सर्किट, सपोज आई विल कॉल इट सर्किट 1 and the other is simple this conductor, this is circuit 2. तो किसमें लगता है आपको करंट फ्लो होगा? सर्किट 1 में या सर्किट 2 में? बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दो. सर्किट 1 में, सर्किट 2 में, किसमें करंट फ्लो होगा? गुड. So current will flow in circuit 1, but there will be no flow of current in circuit 2. Although there would be, because this conductor is kept at room temperature and room temperature is greater than absolute zero,
So the free electrons are in random motion, but after all such motion it will end up where it has started. So उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वो घूम फिर के वहीं आ जा रहा है. सो यू वुड नॉट सी दैट देयर इज एनी करंट दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड, कोई करंट नहीं बनेगा. देयर इज मोशन बट नेट डिस्प्लेसमेंट ना नहीं होने के कारण उसकी कोई करंट नहीं होगी उस केस. तो बेसिकली जब आप बैटरी लगाते हो इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द चार्जेस. होता क्या है कि जब आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी लगाने पर इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है. अगर मान लो कंडक्टर की लेंथ L है तो ये वोल्टेज V आपने लगाया है. आपको पता है ना ये बैटरी का ये पॉजिटिव एंड होता है, ये नेगेटिव एंड होता है. ये पॉजिटिव मतलब ये हायर पोटेंशियल में होता है. बेसिक बता रहा हूँ, ये अभी नोट करते चलो. मुझे पता है बहुत से लोगों को ये सब चीजें शायद पता नहीं होगी. जो बड़ा वाला डंडा होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, और जो छोटा वाला डंडा होता है वो लोअर पोटेंशियल होता है. और जनरली हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और लोअर पोटेंशियल को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं. आपने अगर कोई सेल देखा होगा, जो सेल आप यूज करते हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस, आप घड़ी में यूज करते हो, आपके टॉर्च लाइट की या टॉर्च की जो सेल होती है, ये सब कोई भी आप देखोगे तो उसके अंदर एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा. सो दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस. जब आप एक बैटरी को कनेक्ट करते हो इस कंडक्टर के साथ, तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आप देखो, आपको मैंने सिखाया था कि अगर आइसोलेटेड एक कंडक्टर होगा, आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. लेकिन जब एक कनेक्टेड कंडक्टर होगा, दिस कंडक्टर इज नॉट आइसोलेटेड नाउ. जब मैंने इसको सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया, इट इज नॉट एन आइसोलेटेड कंडक्टर. आइसोलेटेड कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होता है. अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहीं तक पढ़ते आ रहे थे, इसलिए देखो याद करो, जहां पे भी कंडक्टिंग मेटल होता था वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो कर देते थे हम. यस और नो? अरे यार कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड, तुमने शायद ये चीज ध्यान ही नहीं दिया, सब लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिजी थे. अभी तक जो भी कंडक्टर की बात कर रहे थे हम, दे वर व्हाट कंडक्टर? दे वर आइसोलेटेड कंडक्टर. अभी जो मैं बात कर रहा हूं, एक कंडक्टर ले रहा हूं, उस कंडक्टर को एक सेल के साथ कनेक्ट कर रहा हूं. इफ आई से सो, इफ आई डू सो, इफ आई डू दैट, देन जब मैंने इस कंडक्टर को एक सेल के साथ कनेक्ट किया है, तो ये कंडक्टर अभी आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है. आइसोलेटेड कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल जहां जहां होगा वहां जीरो होगा. लेकिन अगर कनेक्टेड कंडक्टर हुआ, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इवन इन द कंडक्टिंग मटेरियल विल नॉट बी जीरो. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देयर विल बी सम इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट यू विल गेट. तो इस कंडक्टिंग मेटल में, तो अगर कोई बोलते कि कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा जीरो होता है, मार्क व्हाट आई एम सेइंग, ऐसे ये सब सवाल आते हैं. देखो ध्यान से. सपोज इफ आई से दिस स्टेटमेंट, लुक एट दिस स्टेटमेंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द और इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ट्रू फॉल्स आपको बोलना है. ट्रू फॉल्स आपको बोलना है. आपको बोलना है फॉल्स इज करेक्ट. व्हाई इट इज फॉल्स? इट इज ट्रू फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर. आइसोलेटेड कंडक्टर में जहां पे भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी. दैट्स 100% ट्रू. बट दिस विल नॉट होल्ड ट्रू फॉर अ कनेक्टेड कंडक्टर. क्योंकि अगर कनेक्टेड कंडक्टर की बात करूं मैं, तो कनेक्टेड कंडक्टर में कंडक्टिंग मटेरियल जहां पे प्रेजेंट है वहां पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो सकती है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्लैरिटी है? गुड. So you understood this, the electrical field inside the conductor is always zero. So this word is correct, this is false, right? It is not true. Because अगर वो isolated conductor हो तभी ये true है, अगर isolated conductor नहीं है, connected conductor है, तो ये false है. ठीक है, good. अभी हम देख रहे हैं. तो बेसिकली जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगता है, सुनना ध्यान से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, मान लो ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लग गया कंडक्टर के अंदर, तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स
इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द डायरेक्शन विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऐसे मूव करेंगे। और अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करेंगे, एक्चुअली पॉजिटिव चार्जेस कुछ होता नहीं है, इट इज अ कन्वेंशन, तो पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बट एक्चुअली फ्लो क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन, राइट? यस और नो, आपने पढ़ा हुआ है, याद करो। कन्वेंशनली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कंसिडर्ड एज द करंट, है ना। बट एक्चुअली क्या फ्लो करता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, राइट। पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव चार्जेस मतलब हम प्रोटॉन्स की बात करें, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं भाई, वो कैसे मूव करेंगे, राइट। हम जो भी इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, दे आर दे आर दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, और वो वैलेंस शेल के बिना नॉन वैलेंस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बॉन्डेड होते हैं टू द न्यूक्लियस, वो नहीं मूव कर सकते। तो जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, वही मूव करने की एबिलिटी रखते हैं। यस नो में भी क्या क्लैरिटी है ये? गुड। सो ये देखो, जब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्जेस विल मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई भी एक को कंसीडर करो, अपने को समझ में आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करने लगेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी? देखो, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इस कंडक्टर के अंदर आया, कंडक्टर के अंदर आया तो इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा, फोर्स लगा तो उनके अंदर एक्सेलरेशन आई, एक्सेलरेशन आई तो उनकी एनर्जी बढ़ी, उनकी वेलोसिटी बढ़ी, उनकी वेलोसिटी बढ़ी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो उनकी एनर्जी बढ़ गई। तो जब आप बेसिकली किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर को कनेक्ट करते हो सेल या बैटरी के साथ, तो आप बेसिकली उन चार्जेस को एनर्जी देते हो, और वो एनर्जी लेके दे गेट दैट एनर्जी एंड दे स्टार्ट मूविंग इन दिस एंटायर सर्किट, राइट। दे स्टार्ट मूविंग इन दिस एंटायर सर्किट। तो समझने वाली चीज ये है कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द चार्जेस। आपको एक बात जो यहाँ पे एकदम ध्यान से समझनी है वो ये है कि बैटरी कैन नेवर मैन्युफैक्चर चार्ज। बहुत बार बच्चे केयरलेसली ये जवाब दे देते हैं, उनसे पूछा जाए कि बैटरी क्या करता है, वो बोलते बैटरी चार्ज प्रोवाइड करते हैं। गलत है, बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करता बेटा। बैटरी तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे देता है कि वो पूरे सर्किट में घूमते फिरे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो पूरे सर्किट में घूमते फिरते हैं। तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द चार्जेस। इसको बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जब मैं बोलता हूँ, इसको कभी कभी इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, कभी कभी नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ, इनफैक्ट दिस इज करेक्ट, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। आपको समझ में आ जाएगी। देखो, व्हेन आई से बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। क्या आपको समझ में आ रहा है? आज का सेक्शन, सॉरी, आज का जो सेशन है वो सेशन बहुत ही यूजफुल है। छोटी छोटी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे एंड देन वी विल टेक ऑन टू द रियल कॉन्सेप्ट फ्रॉम टुमारो। इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। सो ये सब चीजें एकदम क्लियर करो पहले, ठीक है। So battery is a source of constant potential difference. It provides charges to the free electrons, or it provides energy to the free charges. Battery is a source of energy and not charges. Very important. Battery can never manufacture charge. Battery कभी charge manufacture कर नहीं सकता, ठीक है। Battery is only a source of constant potential difference, and by virtue of this, it has got the ability to supply energy to the free charges so that they can complete the entire circuit. ठीक है। अभी होता क्या है और क्या होता है हम समझेंगे इसको ध्यान से। क्या ये स्लाइड सबको क्लियर है? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस स्लाइड? समझ में आया सबको? गुड। आइए, अभी देखिए, जैसा मैंने बोला कि सपोज एक कंडक्टर है, कंडक्टर को आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ये जो आपने पतले जो लाइंस दिखाए हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं लीड वायर्स। बेसिक बात कर रहा हूं मैं, इनको हम क्या बोलते हैं? लीड वायर्स। जो आपने ये जो आपने दिखाया है यहाँ पे बैटरी, बैटरी के साथ जो ये जो वायर दिखाया है आपने, ये वायर्स क्या हैं? दीज आर नोन एज लीड वायर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? दीज आर नोन एज लीड वायर्स। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। इनको लीड वायर्स बोलते हैं। तो समझना इस चीज को। ये देखो, ये कंडक्टर है, ठीक है। मान लो ये बैटरी वोल्टेज भी सप्लाई करना है,
वोल्टेज भी सप्लाई करना मतलब अब देखो इस बैटरी के डेनोशन को समझते हैं, इसको डेनोट कैसे करते हैं, नोटेशन इसका क्या, इसका नोटेशन ऐसा है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी को, एक छोटा डंडा और एक बड़ा डंडा। जो बड़ा डंडा है उसको पॉजिटिव लिखते हैं और जो छोटा डंडा है उसको नेगेटिव लिखते हैं। पॉजिटिव मतलब इट इज एट अ हायर पोटेंशियल और नेगेटिव मतलब इट इज एट अ लोअर पोटेंशियल। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, इट इज एट अ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब समझना कि अगर बैटरी V वोल्ट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये मान ले पॉइंट A है, ये मान ले पॉइंट B है, तो पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B शुड बी इक्वल टू V वोल्ट, दैट इज द बैटरी सप्लाई। इसका मतलब ये है कि हम A और B दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। अब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का है, इसका मतलब अगर मैंने मान लो एक बैटरी लिया 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का बैटरी लिया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो हमें पता है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अभी VB जो है, VB को आप कोई भी रेफरेंस वैल्यू मान सकते हो, कोई भी। अगर आप VB को 0 माने तो VA होगा 10 वोल्ट। आप चाहो तो VB को 10 वोल्ट मान लो, तो उस केस में VA होगा 20 वोल्ट। आप चाहो तो VB को 30 वोल्ट मान लो, उस केस में VA हो जाएगा 40 वोल्ट। तो आपको ये पूरी वर्किंग से एक बात समझ में आई कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होगा, बट किसी भी एक जगह का पोटेंशियल क्या है वो डिपेंड करेगा कि आपने दूसरा रेफरेंस किस वैल्यू पे माना हुआ है। जैसे कि मैंने दिखाया कि अगर आप VB को 0 मानो तो VA 10 है, लेकिन अगर आप VB को 10 मानो तो VA 20 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो यहाँ पे मैंने ये वर्किंग करके दिखाई है। बट जनरली हमारे सॉल्विंग के पर्पस के लिए अगर बैटरी 10 वोल्ट का है तो हम जनरली जो नेगेटिव एंड है उसको मान लेते हैं कितना, उसको मान लेते हैं 0 और इसको मान लेते हैं 10 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जनरल वर्किंग के लिए यही करते हैं। बट बैटरी के दोनों एंड्स की, दोनों टर्मिनल्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। किसी भी एक जगह की पोटेंशियल क्या है वो डिपेंड करेगी कि दूसरी जगह के रेफरेंस का पोटेंशियल आपने क्या लिया है। जैसे कि आपको याद है, सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर हम चले गए, तो अगर इसको 0 मानेंगे, इसको 0 पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे, तो H हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी mgh। अगर इसको 10 मानेंगे तो ये हो जाएगी mgh प्लस 10। बताया था मैंने आपको, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस दैट वी टेक, बट व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज, दैट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल। डिफरेंस इन पोटेंशियल विल ऑलवेज बी 10 वोल्ट, बट किसी भी एक जगह पे पोटेंशियल क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि हमने रेफरेंस कितने को माना है या किसको माना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Am I making sense? Are you understanding? ये सब कुछ कुछ आपको पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से समझ में आता होगा, और आपने पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसके साथ आपको मैच करता हुआ नजर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड। अभी देखो आप ध्यान से, अगर आप लॉजिकली सोचोगे यहाँ पे तो A और B आपको दिख रहा है, यहाँ पे A और B, तो पोटेंशियल एट A इज 10 वोल्ट एंड पोटेंशियल एट B इज 0 वोल्ट। अब समझना, ये जो वायर है इसको हम लोग बोलते हैं लीड वायर, और ये बोला जाता है कि लीड वायर ऐसे वायर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इनकी रेजिस्टेंस क्या है? नेग्लिजिबल, बहुत ही कम रेजिस्टेंस है इनका। तो होता क्या है, सुनना ध्यान से, होता क्या है, फिर से मैं ये कंडक्टर बनाता हूँ। आज का जो ये डिस्कशन है ये इतना बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। इसको कभी भी ऐसा मत सोचना कि सर ने बोला था एकदम बेसिक क्लास है। ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, और मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सर्किट सॉल्व करने के धुआंधार तरीके बताने वाला हूँ, आपको सब आ जाएगा, बट आप बेसिक्स एकदम क्लियर रखो। अगर मैं इसको 10 वोल्ट बोलूं, सपोज मैंने इस साइड को 0 माना है तो इस साइड को 10 वोल्ट मानूंगा। अभी देखो ये जो वायर है, ये पूरा वायर, ये लीड वायर होने के कारण इसकी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये अगर 10 वोल्ट है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट। तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट। तो यहाँ पे जो 10 वोल्ट था बैटरी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, वही 10 वोल्ट कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ तक भी पहुंच जा रही है, मतलब इस कंडक्टर के एक एंड पे पहुंच जा रही है 10 वोल्ट की पोटेंशियल।
और यहाँ पे 0 है, लीड वायर है, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट और इस जगह पे भी 0 वोल्ट। तो लॉजिकली आप देख रहे हो कि बैटरी के साथ जब आपने कनेक्ट किया है तो आपके यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया और यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया, जिसके कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, जिसके कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा इस डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो एंड दे विल, बिकॉज ऑफ दिस दे विल गेन एनर्जी एंड दे विल फ्लो इन द एंटायर सर्किट थ्रू दिस लीड वायर्स। समझ में आया? लीड वायर्स, और लीड वायर्स क्या है? इट इज मेड ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर के थ्रू ये पूरा घूमने लगेगा सर्किट के अंदर, ठीक है, उसको एनर्जी मिली। तो अब सवाल ये है कि एक कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे बच्चे का दिमाग में आता है कि सर इस जगह का पोटेंशियल आपने 10 वोल्ट बोला, इस जगह भी 10 वोल्ट बोला, इसका मतलब ये अगर मैं पॉइंट इसका नाम देता हूँ पॉइंट ए और इसका नाम देता हूँ पॉइंट बी, सो आई एम सीइंग दैट वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू 10 वोल्ट। इसका मतलब ए और बी जो है, ये ए और बी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। अरे अभी तो पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ए एंड बी आर व्हाट? दे आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है तो सर चार्ज कैसे मूव करेगा सर? क्योंकि चार्ज को मूव करने के लिए तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज मूव करेगा सर, और ए और बी तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है सर, तो फिर ये चार्ज कैसे मूव करेगा? हमने तो देखा है कि जब भी हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमने ये देखा है तो बेटा कि चार्ज तो फ्लो करता है, क्योंकि हमको एमीटर मतलब वो डिवाइस जो करंट मेजर करता है, एमीटर हमें करंट की रीडिंग दिखाता है सर। हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। पर आप बोल रहे हो कि ये लीड वायर है, लीड वायर की कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो लीड वायर के क्रॉस में जहां तक लीड वायर है वहां तक वही पोटेंशियल कैरी फॉरवर्ड हो जाती है जो बैटरी से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जनरेट हो रही है। तो 10 वोल्ट है तो वही पोटेंशियल पूरा 10 वोल्ट कैरी फॉरवर्ड होकर कंडक्टर तक पहुंच जाती है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ आप देख रहे हैं। तो अगर ऐसा है सर, ए और बी तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गए सर, इसका मतलब चार्ज को ए और बी के बीच में फ्लो कैसे कर रहा है फिर सर? क्योंकि चार्ज को कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा सर? लॉजिकल पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्या क्यों हुआ? इस लॉजिक में कोई फ्लॉ नहीं है, लॉजिक एकदम क्लियर है। क्या आप लॉजिकली मुझे या फिर मैथमेटिकली आप इस इक्वेशन को देख के समझा सकते हो कि क्या हो रहा है? आप सबने एक लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ, 9th 10th में पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, सबने पढ़ा है। आई नो द सिलेबस, इधर सीबीएसई आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, सबने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ। पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? बुद्धिजीवियों बताइए, आप सबने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, राइट? तो ओम्स लॉ में क्या बोला जाता है? ओम्स लॉ में बोला जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ से ये निकल के आता है, where del V is what? This is representing the potential difference between 2 points. तो potential difference between 2 points, तो ये del V, let us consider A and point B. तो ये del V, suppose if I say VB minus VA, this is del V, which is equal to I into R. तो ये VB minus VA, this is almost equal to 0, सेम पोटेंशियल है, बिकॉज बहुत लेस रेजिस्टेंस होता है, तो ऑलमोस्ट जीरो कर रहा हूँ, एग्जैक्ट जीरो नहीं कर रहा हूँ, तो ये ऑलमोस्ट जीरो है, ये ऑलमोस्ट जीरो है। अभी अब राइट हैंड साइड के देखो, ये जीरो है। क्यों जीरो है? ये इसलिए जीरो है बिकॉज R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, बट I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्या ये इक्वेशन समझ पाए आप? बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, मैंने बोला था आज का लेक्चर इतना बेसिक है कि आपको मजा भी आएगा और आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये जो डेल्टा वी जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो डेल्टा वी जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, अगर मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, अगर मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना मतलब करंट जीरो होना ये जरूरी नहीं है। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन देख, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है बिकॉज आर जीरो है, करंट कैन बी एनी वैल्यू। अरे भाई नहीं आया। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है बिकॉज रेजिस्टेंस इज जीरो। एज आई एम सेइंग इट्स अ लीड वायर, मींस लीड वायर डज नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस। अगर मैं एक रजिस्टर की बात करूं और लीड वायर की बात करूं, तो लीड वायर डज नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस, मींस इट्स रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो।
तो लेफ्ट हैंड साइड 0 है, क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में दो चीजों का प्रोडक्ट है, I इंटू आर। आर 0 है, I कैन बी एनी वैल्यू। और हमने ये लॉजिकली देखा है कि जब अगर हम लीड वायर लेते हैं तो करंट, it's a huge amount of current that flows, or a good amount of current that flows. Huge तो नहीं बोलना चाहिए, good amount of current that flows. Why good amount? Because कोई रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं है या फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट ज्यादा से ज्यादा बहने की कोशिश करेगा, तो करंट वैल्यू इंक्रीज है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि लीड वायर में 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम होने के बावजूद भी क्यों करंट फ्लो करता है? क्या आप ये लॉजिक समझ पाए? आई एम आस्किंग यू ऑल एंड आई नीड योर रेस्पॉन्सेस। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? एवरीवन क्लियर? गुड गुड। चलो, सो ये जो चीज थी ये बैटरी के संबंध में आइडिया थी। अभी होता क्या है? सो होता ये है, देख, मान ले सर्किट में एक लोड है, इसको हम लोग लोड बोलते हैं। दिस लोड कैन बी एनी डिवाइस which is connected to or which is connected in an electrical circuit, which is connected in an electrical circuit with a battery. It can be anything, it can be a small bulb, ठीक है, it can be a press, it can be a गीजर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्टेड है विद हेल्प ऑफ बैटरी और एनी पावर सोर्स, ठीक है, एनर्जी सोर्स। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप फॉर एग्जांपल ऐसा एक लोड है, इस लोड को जब आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको पता है कि मान लो बैटरी का वोल्टेज डिफरेंस V है, तो इधर V आया और इधर 0 आया। तो बेसिकली जो अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो, कन्वेंशनल डायरेक्शन का फ्लो ले लूं पॉजिटिव चार्जेस का, तो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के कारण V और 0 है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में, बिकॉज ये पूरा कंडक्टर है। इमेजिन करो यहां से लेके यहां तक ये पूरा चीज पूरा 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 एक कंडक्टर है। उसके अंदर इतना ही पार्ट एक रजिस्टर का है या एक लोड का है। लोड मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और जब भी हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात करें तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा ही, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैविंग रेजिस्टेंस। फिलहाल हम रजिस्टर्स की बात करेंगे, बाद में आप इलेक्ट्रिकल और भी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करोगे जैसे कि इंडक्टर, कैपेसिटर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब की बातें होंगी बाद में। फिलहाल हम लोग सिर्फ रजिस्टर की बात कर रहे हैं। सो ये पूरा जो आपका एलिमेंट है जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड है, राइट, ये पूरा एक कंडक्टर है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट लोड का है जो कि रेजिस्टेंस कंटेन करता है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, जब आप बैटरी लगाते हो तो ये बैटरी, ये जो भी फ्री चार्जेस प्रेजेंट है इस लीड वायर में या वायर में, उन फ्री चार्जेस को एनर्जी देता है। कितनी एनर्जी देता है? वो एनर्जी देगा, याद करो एनर्जी आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी एज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यू रिमेंबर दिस? अरे भाई, डेल यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी पढ़ा था ना यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ऐसा क्या कर रहे हो भाई, पढ़ा था ना पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल यू द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी। तो अगर डेल वी इज बीइंग सप्लाइड एट द टू एंड्स ऑफ द बैटरी, इसके अक्रॉस में डेल वी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V माइनस 0, दैट इज डेल वी। उसको अगर मैं चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट विल गिव मी द टोटल एनर्जी दैट इज गिवन टू द चार्ज। दिस डेल यू tells us the total energy that is given to the charge. अब बैटरी के सामने, जब बैटरी के सामने जो चार्जेस हैं, बैटरी जब एनर्जी दे देती है चार्जेस को, तो वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत जोश आ जाता है और वो उस जोश से आगे बढ़ते हैं। इस सर्किट में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है रजिस्टर या लोड। ये लोड कुछ भी हो सकता है, ये लोड एक पंखा हो सकता है,
ये लोड एक बल्ब हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस मान लो, ऐसे कनेक्ट किया हुआ है आपने सर्किट में, तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्जेस ही मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज की फ्लो को ही दिखा रहा हूँ, कन्वेंशनल करंट ही कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो यहाँ पे जो इनकी एनर्जी लेवल है, ये बहुत हाई है, काफी हाई है। और ये एनर्जी जो चार्जेस कैरी कर रहे हैं, ये पूरा इस सर्किट के थ्रू फ्लो करते हैं, मतलब इस बल्ब के थ्रू फ्लो करते हैं, और फिर यहाँ पे वो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं विच आर सॉरी एनर्जी कैरियर्स होते हैं विच आर द पॉजिट्रॉन्स, ये पॉजिट्रॉन्स यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उनका एनर्जी का स्तर होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसको देखो, इस एरो को और ये वाला एरो को देखो, आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों की साइज में बहुत डिफरेंस। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल काफी हाई होती है, यहाँ पे एनर्जी लेवल काफी कम होती है। तो एनर्जी गई कहाँ? दिस एनर्जी इज डिसिपेटेड, दिस एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द बल्ब इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी। तो जो भी एनर्जी बैटरी ने, ध्यान से सुनना, जो भी एनर्जी बैटरी ने फ्री चार्जेस को दी है, वो पूरी एनर्जी फ्री चार्जेस लेके जोश के साथ सर्किट में जाता है, और सर्किट में जाने के बाद जो भी लोड या रेजिस्टेंसेस जो वो एनकाउंटर करता है, उसको वो पूरी एनर्जी दे देता है। और जब वो लोड से बाहर आता है चार्ज कैरियर, तो उसके एनर्जी लेवल काफी डाउन हो जाती है। उस डाउन एनर्जी लेवल से फिर वो आता है यहां पे बैटरी के पास। बैटरी इसको इनसाइड द बैटरी लेके जाती है, वहां पे इसको एनर्जी देती है, फिर से इसको यहाँ पे छोड़ देती है। यहाँ पे जो फिर से एनर्जी लेवल उसकी हाई हो जाती है, यहाँ पे एनर्जी लेवल एकदम कम, यहाँ पे एनर्जी लेवल, ठीक है, बहुत ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या क्लियर है एवरीवन? पक्का 100% क्लियर है ये? सो तो हम ये बोलेंगे कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी चार्ज कैरियर्स को एनर्जी देती है, या चार्ज कैरियर्स को एनर्जी देती है, या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो फ्री चार्जेस हैं, दे एक्ट एज एनर्जी कैरियर्स हु dissipate their energy at the load. लोड मतलब बल्ब, फैन, हीटर, गीजर, प्रेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसको जो बैटरी ने एनर्जी दी, वो एनर्जी चार्ज कैरियर्स एज एनर्जी कैरियर्स वो एनर्जी लेके घूमते हैं, और जहां जहां लोड रेजिस्टेंसेस आती है, जैसे कि बल्ब हो गया, गीजर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसको वो एनर्जी देती है, वो ऑपरेट करता है। और एनर्जी देने के बाद चार्ज कैरियर दूसरे एंड से जब निकलते हैं, उनकी एनर्जी काफी ड्रूप डाउन रहती है। समझ में आ रही है? फिर से वो बैटरी के पास जाते हैं, बैटरी से फिर से एनर्जी लेते हैं, और इसी तरह सर्किट में घूमते रहते हैं। एक बात याद रखिए कि इस पूरे प्रोसेस में जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स थे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या जो फ्री चार्जेस हैं, दैट इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होते। मतलब ये बैटरी जो है, ये बैटरी कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट नहीं करता है, वो सिर्फ चार्ज कैरियर्स को क्या देता है बेटा जी? एनर्जी। और वो एनर्जी कहां डिसिपेट होती है बेटा जी? जो भी लोड है, जिसे मैंने नाम दिया, एक नाम दिया स्पेसिफिकली, लोड, रेजिस्टेंस, बल्ब, गीजर, हीटर, प्रेस, व्हाटएवर इट इज। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये बैटरी का थोड़ा बहुत ज्ञान था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए।
कि बैटरी क्या करती है। बैटरी कभी भी चार्ज सप्लाई नहीं कर सकती। चार्ज सप्लाई तो वो फिक्स्ड है, वो कंडक्टर हमने जो लेंथ ले लिया उसके अंदर जो फ्री चार्जेस प्रेजेंट है वही चार्ज कैरियर्स हैं। चार्ज कैरियर्स को बैटरी एनर्जी देगी, चार्ज कैरियर्स वो एनर्जी लेंगे और सर्किट में घूमेंगे, और सर्किट में घूमते वक्त जहां पे भी लोड रेजिस्टेंसेस आया या लोड आया उसको एनर्जी डिसिपेट करेंगे, उस पर एनर्जी देंगे और निकल आएंगे बाहर। जब निकल आएंगे तो उनकी एनर्जी लेवल डाउन होगी। क्या चेंज नहीं होगा? चेंज नहीं होगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का अमाउंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज बाय एडिंग अ बैटरी। बैटरी ऐड करने पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल ऑफ चार्ज कैरियर्स चेंज होती है, चार्ज कैरियर्स की संख्या में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि मान लो पिकनिक गए हो तुम, सुबह मॉर्निंग पोद्दार स्कूल पिकनिक के लिए निकली है, तो पूरे बस में मान लो 30 बच्चे थे, मॉर्निंग का समय था, सब हो हल्ला करे जा रहे हैं, एनर्जी लेवल काफी हाई है। ट्रैकिंग पे गए थे, ट्रैकिंग किया उन्होंने एक बड़े से माउंटेन का, तो यहाँ पे जब थे तो तन के थे, और जब नीचे आए तो ऐसे हो गए, तो ऐसे हो गए। तो बस में जब बैठा तो अब भी तो जो नंबर ऑफ संख्या होती है स्टूडेंट्स की वो तो 30 ही रहती ना बेटा। ऐसा तो नहीं बोलते ना तुम कि चलो ट्रैकिंग खत्म और हमारे 2 दोस्त भी खत्म, सो 30 गए थे 28 वापस आए, ऐसा तो नहीं होता ना। ट्रैकिंग करते हो तुम, एनर्जी घर से खाना पीना लेके जाते हो, एनर्जी गेन करते हो, माउंटेन चढ़ते हो, एनर्जी डिसिपेट करते हो, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि माउंटेन चढ़े आप 30 गए थे 25 वापस आए, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो सेम रहता है ना। ऐसा नहीं कि 30 स्टूडेंट्स गए थे भाई ट्रैकिंग में और जब वापस आए तो 25, बोले ट्रैकिंग खत्म 5 खत्म, ऐसा तो नहीं बोलते ना तुम। लॉजिकल है ना? तो ऐसा अगर नहीं बोलते हो तो वही कॉन्सेप्ट, वही एनालॉजी यहाँ पे लगता है। प्लीज समझिए, चार्ज कैरियर्स की संख्या में कोई चेंज नहीं होता है। बैटरी कोई चार्ज जनरेट भी नहीं कर सकता, किसी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, बैटरी सिर्फ और सिर्फ उनको एनर्जी दे सकता है। क्या मेरी बात समझ आई है? ठीक है, ठीक, everybody understands this? Fine. So